शुभ संध्या सभी को। आयुर्वेदिक संगठन है, आंदोलन को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार करने के लिए प्रसिद्ध है, चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। हाँ तो नाव काय द्यायचं तो याचं नाव काय 1+ आज के हमारे डॉक्टर बसंत राव, डॉक्टर विजय एक उत्साही और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद से होम्योपैथी में एमडी की उपाधि प्राप्त की है। विजय एक व्याख्याता, एक प्रोफेसर और पीडी जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 3 वर्षों तक प्रिंसिपल भी रहे हैं। उन्होंने होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करके सोरियासिस और अपेंडिसाइटिस का के ऊपर शोध से प्रकाशित किए हैं। इनके अलावा उन्होंने वर्ल्ड आयुष एक्सपो 2019 में शोध किया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ओवरट्री। डॉक्टर विजय, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर से आ जाएगा आपका। My topic is a cure of psoriasis using frequent homeopathic doses in solution. After the invention of homeopathy, first of all, I am very much thankful to Dr. Sahni sir. सर आप हिंदी में बोलेंगे सर? आप हिंदी में बोलेंगे सर? जी हिंदी में बोलेंगे। No sir, I told you that I am prepared in English sir. नहीं सर, आप पीपीटी ठीक है, अंग्रेजी में रहेगा, आप हिंदी। हाँ। सबको प्रणाम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहनी सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एक चांस दिया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, क्योर ऑफ सोरियासिस यूजिंग फ्रीक्वेंट होम्योपैथिक डोसेज इन सॉल्यूशन। So after the invention of homeopathy, Hahnemann had made different changes depending upon his experiences. Whatever he experiences, accordingly he changed, and from dry dose to water doses. The last 5 years of Hahnemann, he was using the solution or the water doses instead of dry doses. So why this thing happened in the last years of the Hahnemann, last 5 years? Because after a lot of experience, when Hahnemann treat different cases, he found that the aggravation after giving the centesimal scale dose is long lasting. As he said before the 6th edition, that give the dry dose and wait and watch. First of all, there is a medicinal aggravation, and after that, it is automatically disappear in second reaction. But in many cases, it is difficult. The limit, it is unlimited in many cases. That's why Hahnemann, the idea comes in the Hahnemann's mind that there is the material dose of the medicine in centesimal is more. That's why he diluted it and made it more minute than centesimal. Means 50,000 times less material dose he had taken to prepare LM potency. So whatever Hahnemann claimed that to produce the primary action or the medicine should be always stronger than natural disease. डॉक्टर विजय जी, आपका पीपीटी मूव नहीं कर रहा है? Yes sir. हाँ, अभी कर रहा है। Fifth edition of Organon, Dr. Hahnemann introduced olfaction and oral medicinal solution as a new method of dose administration. The change from dry dose to dynamic medicinal solution. So this happens in the 5th edition of Organon, when centesimal scale was given in watery doses instead of dry doses.
and repetition was done. आप हिंदी भी बीच बीच में बोलिए सर, हिंदी भी बीच बीच में बोलिए जी। डॉक्टर हनीमन ने 5th एडिशन में ये ऑल फ्रैक्शन और ओरल मेडिसिनल सॉल्यूशन, इसके बारे में पहली बार इस पे लिखा है। अब तो 4th एडिशन तक उन्होंने ड्राई डोज के बारे में ही लिखा था, लेकिन ये 5th एडिशन में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ओरल मेडिसिनल सॉल्यूशन ये उन्होंने यूज किया है। एट फर्स्ट इन द सबसे पहले सेंटिसिमल स्केल में। इन aphorism 68, Hahnemann has used the word uncommonly small doses required in this method of treatment, that is give as minimum as the sick required. By applying this rule, the cure should be in a mild, gentle and permanent manner without undesirable aggravation and unwanted medicinal solution. So give as minimum as possible, और जितना आप उसको डाइल्यूट करेंगे उससे जो एग्रेवेशन होने वाला है वो एग्रेवेशन नहीं होगा। जो ड्राई डस्ट में अपने को देखने को जो मिलता है वो ऐसा डाइल्यूट करके जब आप देंगे तो आपको ये एग्रेवेशन नहीं मिलता है। In aphorism 286, 5th edition, the greater the quantity of fluid in which it is dissolved when administered to the patient, although the actual amount of medicine it contains the same. For in this case, when the medicine is taken, it comes into contact with a much larger surface of sensitive nerves responsive to the medicinal action. जब आप वाटर डोज में देंगे तो इसका एक्शन ड्राई डोज से भी ज्यादा तुरंत होता है। Homeopathic cure takes place because of reaction of the vital force against the stimulation of the remedy. So for that, we must be very much cautious while giving the stimulation by the remedy. If the dose is more than the requirement, then there will be strong stimulation to the vital force and the result will be long-lasting aggravation. The period of this aggravation is not limited. So in many cases, this बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, जब मेडिसिन आप देते हैं तो ये एग्रेवेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे हनुमान ने बोला कि कुछ देर तक एग्रेवेशन रहेगा और बाद में वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में एक्यूट डिसीज में, और कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्रॉनिक डिसीज में ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है परमानेंट। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, ये एग्रेवेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जल्दी से कम नहीं होता है। तो इसके लिए आप ये जब वाटर डोज में देंगे तो इसका इफेक्ट बहुत कम लेवल पे होता है, एग्रेवेशन ये होने नहीं देता है। तो मेडिसिन के बाद जो बढ़ता है डिसीज वो ये होने नहीं देता है। Stuart Law state that a well selected remedy may fail or even do injury because of wrong doses. Dose as well as remedy must be adjusted to the patient need. Dr. Kent also stated that when the dose is too large to cure, man receives it as a sickness. So around the year 1840, Hahnemann began to introduce his new method of dynamization that we called as a 50 millisievert scale into clinical practice. From 1840 to 1843, he used both the centesimal and LM potencies in medicinal solution. जो हनेमन के लास्ट 5 years के थे लाइफ के, जो उन्होंने पेरिस में बिताए, तो वहां पे उन्होंने ये सेंटिसिमल और 50 मिलीसिमल पोटेंसी, जो कि न्यू मेथड ऑफ डायनामाइजेशन जो हनेमन ने बोला है 6th एडिशन में, ये दोनों भी उन्होंने वाटर डोज में यूज किए हैं इंस्टेड ऑफ ड्राई डोसेस, एंड ही गॉट द वंडरफुल रिजल्ट। और हनेमन ने ये लिखा भी है कि एलएम पोटेंसी जो है नया न्यू मेथड ऑफ डायनामाइजेशन, इसको आप खुद यूज कीजिए और इससे क्या इफेक्ट होता है आप देखिए, उसके बाद आप इस पे बिलीव कीजिए ये सही है या गलत है। जैसा सिंकोना बार का इन्वेंशन करने के बाद हनेमन ने लिखा है
अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो ये सही है या गलत है। जैसा हेरिंग ने उसको वेरीफाई किया था, वैसे ही ये न्यू मेथड ऑफ डायनामाइजेशन जो है उसमें भी हनीमन ने लिखा है, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो आप खुद इसको यूज कीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि ये सही है या गलत है। और ये सिक्स एडिशन जो है बहुत लेट पब्लिश हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ हनीमन, और 1842 में उसका मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रेडी था पब्लिश होने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिश नहीं हो सका। इसलिए सिक्स एडिशन बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं है, और ये 1921 में ये पब्लिश हुआ है। तब जाके धीरे धीरे ये मालूम हुआ कि हनीमन ने कुछ नया पोटेंसी बनाया है। लेकिन उससे पहले हनीमन के बाद जो डॉक्टर केन सर आए, उन्होंने वही ड्राई डोज यूज किया, वन डोज एंड वेट एंड वॉच। पेशेंट को एग्रेशन होता था और बाद में वो कम होता था, और सीरीज ऑफ पोटेंसी जो केन ने चालू किया है वही सब ने यूज किया है। फैक्टर्स of adjusting the dose by which we can decrease the severity of the aggravation, like the number of pills used when making solution, the size of medicinal solution, the amount of the medicinal solution, the potency factor, and the number of succussions giving just prior to the ingestion of remedy. So हर एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक गोली लो या 10 गोली लो, ये सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू एज मिनिमम एज पॉसिबल जो हनुमान ने बोला है, एक ग्लोब्यूल से जो काम होता है और 10 ग्लोब्यूल जो देंगे आप, उससे आप एग्रेवेशन होता है। तो क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन साइज ऑफ मेडिसिनल सॉल्यूशन, आप एक कप ले सकते हैं 4 ओजेड या 8 ओजेड। तो जैसा पेशेंट सेंसिटिव रहेगा वो हिसाब से आप वाटर का डोज बढ़ा सकते हैं, डायल्यूट करके उसको दे सकते हैं। क्योंकि आपका जो एम है वो स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज प्रोड्यूस करना अभी नहीं है। आपका जो अभी एम है वो डिसीज को क्योर करना है, विदाउट प्रोड्यूसिंग द एग्रेवेशन, विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज आप क्योर कर सकते हैं। और यही हनीमन का बोलना था कि अभी ऐसा जरूरत नहीं है कि पहले बढ़ना है और बाद में कम होना है। आप डायरेक्टली पेशेंट को एमल्ट्रेशन एमल्ट्रेशन आप दे सकते हैं, और जब एक एक महीने तक आप ये रिपीट करते हैं इन क्रॉनिक केस ऑल्सो, तो एक महीने के बाद थोड़ा सा एग्रेवेशन आपको देखने को मिलेगा और पेशेंट क्योर हो जाता है बहुत जल्दी। The preparation of medicinal solution for administration. Take one globule of the desired potency and place it into a clean bottle. The average size of solution is between 4 oz to 6 oz of distilled pure water. Normally, this watery solution includes a small amount of pure alcohol as a preservative. There should be sufficient room for succussion. This medicinal solution is now ready for use. Suckers the bottle just prior to ingestion, 8, 10 or 12 times, depending on the severity of the patient. This raises slightly the potency and activates the remedy. After succussion, take 1 teaspoon of the medicinal solution and place it into the 4 to 6 oz of water in a dilution glass and stir. Most cases are begun with 1 spoon at a time. तो आप ये डोज जो आप प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत सारे डॉक्टर जो है ये जो 50 मिलीसिमल स्केल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 100 ml बोतल जो ग्लास बोतल होता है एम्बर कलर का, वो यूज़ करना है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस। ये सब मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए इसका भी सोल्यूशन है। हनुमान ने ड्रॉप डोसेस भी लिखा है, और ये ड्रॉप डोसेस बहुत सारे फिजिशियन यूज़ नहीं करते हैं। ड्रॉप डोसेज अभी मैं लगभग 10 साल से ये ड्रॉप डोसेज यूज कर रहा हूँ, और इसको एक ग्लास बोतल की भी जरूरत नहीं होती है, जो आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है ये ड्रॉप डोसेज में। तो 100 ml का बोतल लेके, ग्लास बोतल लेके बनाने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रीवियस मेथड, 100 ml ऑफ बोतल, और इसमें से जो मार्किंग होते हैं 10 मार्किंग, उसमें से 1 पार्ट आप ये कप में डालते हैं और उसमें से आप डोसेस लेते हैं।
तो ये मेंटेन करना ग्लास बोतल बहुत डिफिकल्ट है बहुत सारे फिजिशियन के लिए। Hahnemann recommends using mini solutions with careful and sensitive patients because with a small solution, the correct number of drops must be very precise. The use of second vial instead of a cup so that the dose that is given directly to the patient also may be succussed before use. This technique of dosing is called as a split dose because it only uses one pill or two to make a watery solution, which is then split over several days, weeks, and months. So instead of taking the ग्लास बोतल में जो 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं आप, उसके बजाय आप एक 15 ml का ड्रॉपर भी ड्रॉपर बोतल जो आता है वो भी आप देख सकते हैं, और उसमें से ड्रॉप डोसेज आप यूज कर सकते हैं कि उसमें से 10 बूंद आप एक कप पानी में डालिए और उसमें से आप पेशेंट को दीजिए। तो 100 ml बोतल आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। The preparation of medicinal solution for administration in small quantity. One medicinal globule of size 10 is diluted in 15 ml of distilled water with 5 to 10 drops of alcohol. From this solution, 10 drops are added in a half cup of water, and from this cup, 2 spoons should be taken once or twice a day according to the case. तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ। 15 ml के ड्रॉपर बॉटल में डिस्टिल वाटर है और उसमें आप ये एक ग्लोबुल डालेंगे, या तो सेंटिसिमल स्केल का या तो फिर एलएम पोटेंसी का 0/1 0/2 जो भी है, और उसमें 5 to 10 ड्रॉप्स अल्कोहल के आप डालेंगे। ये हो गया आपका मदर सोल्यूशन। तो इसमें से जब आप पेशेंट लेगा तो पेशेंट जब लेगा तो हाफ कप ऑफ वाटर में वो 10 ड्रॉप उसके डालेगा और उसमें से वो 2-2 स्पून 2 टाइम 3 टाइम ले सकता है। और या फिर सेकंड जो कप में आप डालेंगे तो उसके बजाय आप एक 15 ml का बोतल भी यूज कर सकते हैं या 30 ml का बोतल भी यूज कर सकते हैं, जिसमें से पेशेंट हर टाइम लेने से पहले उसको सकशन करके लेगा, क्योंकि हर टाइम इंक्रीजिंग पोटेंसी पेशेंट को मिलेंगी, वही सेम पोटेंसी नहीं मिलेंगी बाय सकसिंग द बोतल। Like this, one globule in 15 ml of dropper bottle with distilled water and 5 drops of alcohol, and shake it, and then for the preparation of dose you should take the half cup of water and एक हाफ कप पानी में आप एक 10 बूंद इसके डालेंगे और ये सॉल्यूशन आप पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो ड्रॉप है उसपे से देना नहीं है कभी भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटिसिमल स्केल भी आप जब देते हैं वाटर डोज में तो पहला जो आप एक ग्लोबल डाल के जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो डायरेक्टली पेशेंट को कभी देना नहीं है, सेंटिसिमल में भी नहीं और 50 मिलीसिमल में भी नहीं, सेकंड कप में का ही देना है, क्योंकि इससे भी एग्रेवेशन कम होता है। सेकंड कप से अगर देंगे तो फर्स्ट से आप अगर आप देंगे तो 100% उसमें एग्रेवेशन होता है बहुत सारे केसेस में। The LM potency, L and M are the Roman numericals of 50 and 1000 respectively. These potencies have much deeper action than the centesimal scale. LM potencies are made by diluting the remedy in ratio of 1 to 50,000 at each step instead of 1 in 100, while keeping the succussion at 100. तो सेंटिसिमल में जो 10 सक्शन होते हैं तो यहाँ पे 100 सक्शन है और क्वांटिटी भी 50,000 टाइम लेस है। So LM potencies are more powerful than centesimal scale, but they will not produce the aggravation because of the dilutions or solution. In 1950, this LM potency was first time noticed by Dr. Charles Ford of France. After that, by Pierre Smith, the Swiss homeopath. In 1954, he had published a small book, The Hidden Treasure of 6th edition of Organon. He had given the name 50 millisimal potency to this new method. तो ये 50 millisimal potency जो नाम दिया है वो
पियर्स स्मिथ ने ही दिया है। तो आफ्टर 1954 उसके बाद धीरे धीरे दूसरे लोगों ने उसको यूज किया है, लेकिन 1954 से पहले ये यूज नहीं हुआ। इसलिए पहले से जो लोग फॉलो करते हैं कैंट को, तो सभी ड्राई डोज को ही यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। The centrifugal potencies have a rapid onset and reach aggravation at the beginning of the treatment when the patient is most ill and weak, while LM tends to aggravate at the end of treatment when the pathology is healed and vitality restored. तो सेंटिफिकल पोटेंसी देने के बाद एग्रेवेशन तुरंत होता है क्योंकि मेडिसिनल ट्रॉम्बोलिसिस फॉर्म होता है, और ये जो एग्रेवेशन होता है इसमें पेशेंट पहले ही वीक है, उसकी सेंसिटिविटी हाई है बिकॉज उसको डिसीज है, तो वो एग्रेवेशन वो ये सहन नहीं कर पाता। अपन बोलते हैं कि मेंटली पेशेंट फील्स बेटर दो देयर इज एग्रेवेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, एग्रेवेशन होता है पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता ही है। और अगर ये डिस्कम्फर्ट आपको नहीं होना है तो आप ये वाटर डोसेज यूज कीजिए, सेकंड कप थर्ड कप, तो आपको विदाउट एग्रेवेशन क्योर मिलता है, एग्रेवेशन होता ही नहीं है। और ये वाटर डोसेस में जो एक्शन होता है मेडिसिन का, ये इस पर डिपेंड है, मेमोरी ऑफ वाटर विच वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जैकस बेनेवेनिस्ट। द थ्योरी ऑफ मेमोरी ऑफ वाटर was put forward by Dr. Jacques Benevenist in June 1988 in the journal Nature. He claimed that extremely high ultramolecular dilutions of an antibody had effects on the human basophils. He proved that the solution, which does not contain any molecule and was simply water, has positive effect on the basophils. Unfortunately, his findings were subsequently denounced as a pseudoscience. तो इसी पे ये वाटर डोसेज डिपेंड है। वाटर कीप्स द मेमोरी ऑफ दैट सब्सटेंस। वाटरी वाटर या पानी वो सब्सटेंस की मेमोरी अपने अंदर रखता है। आप वो सब्सटेंस को कितना भी माइन्यूट कीजिए, बिना बियॉन्ड एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स का एक भी नहीं अगर है वो सब्सटेंस का, फिर भी उसमें उसकी मेमोरी रहती है, और वो मेमोरी पे ही वो एक्शन होता है और पेशेंट को रिजल्ट मिलता है, पेशेंट क्योर होता है। लेकिन साइंस इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। The water stores energy from the source extract transferred by succussion in the vibratory levels. The higher the dilution is, the more vibratory energy the water molecules have, and so more effective they are. Greater vibratory energies are shown in ice crystals made from homeopathic water. तो जो सादा वाटर, सादा पानी जो है और अपना होम्योपैथिक का जो सोल्यूशन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। उसमें सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं है होम्योपैथिक वाटर में, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्लेन वाटर से डिफरेंट होता है। What this proves is that there is something about the homeopathic water that is different from regular water, and the biological effects are undeniable and easy to verify. This water contains the memory of the medicinal substance. I will show you one case. ऐसे बहुत सारे केसेस हमने ट्रीट किए हैं बाय दिस वाटरी सॉल्यूशन, जो ड्रॉप डोसेस में दिए गए हैं, और 100% आपको क्योर मिलता है विदाउट प्रोड्यूसिंग द एग्रेवेशन, स्पेशली इन द स्किन डिसीज लाइक सोरियासिस, देन एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस में सब सिम्टम आप देखते हैं, और एलियम सिपा जब इंडिकेट होता है तो एलियम सिपा आप 30 पोटेंसी में देंगे तो उसका एग्रेवेशन इतना सीवियर होता है जो फिर जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है। और वही एलियम सिपा आप जब वाटर डोज में देंगे, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास या फोर्थ ग्लास, उसमें से अगर देंगे तो विदाउट एग्रेवेशन उसका राइनाइटिस जो है वो तुरंत कम होता है। बर्निंग जो नाक में हो रहा है उसको, कोराइजा जो है वो तुरंत कम हो जाता है। वन ऑफ द पेशेंट who is suffering from psoriasis,
Present complaints: profuse dandruff on scalp without itching for 13 years. Scaly eruptions all over the body for 12 years. Thick eruption but no cracks. No itching in any of the eruptions. Recurrent coryza due to cold drinks, ice cream, and cold weather since childhood. So these are the presenting complaints. In history of presenting complaints, when he was in 10th grade और 10th क्लास, जब वो 10वीं कक्षा में था, तो उसको टीचर ने पनिश किया किसी बात पे, सब बच्चों के सामने, और ये बात जो है उसको सहन नहीं हुआ, और तभी से उसने स्कूल छोड़ दिया। और उसके माइंड में जो गुस्सा था टीचर के बारे में, वो एक्सप्रेस नहीं कर सका, और सब बच्चों के सामने जो इंसल्ट हुआ, तो सप्रेस एंगर एंड इंसल्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके 6 महीने में ही उसको ये सोरियासिस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले जो है वो डेंड्रफ स्टार्ट हो गया स्काल्प पे, और धीरे धीरे पूरे बॉडी पे उसको इरप्शन आने लगे, ये 6 महीने के बाद। These are the eruptions. Profuse dandruff with these eruptions, scaly eruptions. Then past history unremarkable, family history, diabetes, mother and father, mental generals, dullness, he is of reserved nature, hiding himself from people because of eruption. ये लोगों में जाना भी नहीं चाहता था है, क्योंकि वो डरता है कि लोग देखेंगे कि मेरे को सोरियासिस है, स्किन डिजीज है। तो घर के बाहर भी ये नहीं निकलता था, क्योंकि उसको डर था लोगों का कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। Physical generals: appetite good, thirst 1 glass at frequent intervals, desire not specific, perspiration normal, urination normal, stool pattern satisfactory, thermals he is chilly, sleep and dreams also normal. Then reported totality. The elements from anger, this is the very important symptom or exciting cause. Then he is of reserved nature, dullness, hiding himself, thirst large quantities for large quantity of water, then cold taking tendency and cold aggravation. Case processing: diagnosis of disease psoriasis, diagnosis of phase of disease chronic progressive, diagnosis of miasm sauropsychotic, diagnosis of sociality moderate. So this is the reputation chart. So Nitromur is the first who covers 6 symptoms with 16 marks, and Staphylococcus aureus is second, covering 6 symptoms with 11 marks only. But as the elements from is very important, suppressed anger or insult, so I had given Staphylococcus aureus. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो स्टैफिस सेग्रिया 200 पोटेंसी में वाटर डोज में उसको दिया गया। जब वो फॉलोअप के लिए आया तो इंटेंस इचिंग पूरे जो इरप्शन थे, जो इसमें पहले इचिंग नहीं था, तो अभी इचिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन स्काल्प में जो डेंड्रफ है वो थोड़ा कम था पहले से। The previous eruptions have been inflamed. There were no new eruptions. Dandruff better than before, but with itching. तो itching, बहुत सारा itching उसको चालू हो गया उसके बाद। The assessment of this: the dandruff was improved. It might be a homeopathic aggravation according to hearing law of cure, but with more diluted water doses, this type of aggravation and wetting can be avoidable. So ये डोज जो है ये उसको स्ट्रांग हो गया, 200 आपने वाटर डोज में दिया है, लेकिन ये भी उसको स्ट्रांग हो गया, तो इसका भी उसको और डाइल्यूट चाहिए और माइनर डोज उसको चाहिए। इसलिए इसमें अब मैंने उसमें कन्वर्जन किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग द सेंटिसिमल स्केल आई हैड गिवन द LM potency or 50 millisimal potency after this. So I preferred to change the potency, hoping the gentle and more rapid cure. जो इचिंग है, जो इन्फ्लामेशन हुआ है,
वो भी मतलब ये अच्छा साइन है, बाद में वो कम हो सकता है, लेकिन कब कम होगा ये मुझे मालूम नहीं। इसलिए तुरंत मैंने उसको चेंज कर दिया, सेपिसैक्रिया 0/2, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था, 0/1 नहीं था। एंड जैसा आपने अब देखा है ऊपर प्रिपरेशन कैसा करते हैं ड्रॉप डोसेज में, वैसा ही प्रिपेयर किया, और वो कप में से उसको अ, दिन में 2 टाइम वो डोज दिया गया, सेपिसैक्रिया 0/2। और नेक्स्ट फॉलोअप जो है उसमें स्मॉल एब्सेस इन द एक्सिला डेवलप, उसके एक्सिला में एक एब्सेस डेवलप हुआ, और वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट स्पॉन्टेनियसली ओपन हो गया और ड्रेन भी हो गया, और इचिंग पूरी तरह से कम हो गया बाय 0/2 सेपिसैक्रिया। इरप्शन ऑन फोरहेड हैव डिसअपियर, जो फोरहेड पे इरप्शन थे वो भी डिसअपियर हो गए, और डेंड्रफ पहले से बहुत ज्यादा कम था, इसलिए फिर सैक्लैक दिया गया, क्योंकि अभी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। पहले एमुलेशन था, डेंड्रफ कम था सेपिसैक्रिया 200 देने के बाद, लेकिन इचिंग बहुत था, इन्फ्लामेशन बहुत था। तो इसलिए ये उसको इतना भी आपने उसको तकलीफ देना नहीं है, जैसा हनीमन ने सेकंड अफरोज में बोला है आइडियल क्योर, इट शुड बी माइल्ड, जेंटल एंड परमानेंट। तो जेंटल क्योर के लिए आपको ये चेंज करना बहुत जरूरी है, आपको वेट एंड वॉच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट ये टॉलरेट नहीं कर पाता, दो इट इज होम्योपैथिक एग्रीवेशन। नेक्स्ट फॉलो अप, ऑल eruptions have disappeared, dandruff has totally disappeared, no complaints, prescription SL for 1 month again, then follow up, skin clear, no complaints, SL for 1 month, no further appointments. So this was the case after photos, after treatment photos. So within a very short period, all eruptions disappeared without wait and watch. I will show you previous photos. These are the previous photos, and all eruptions were disappeared by this Sapisacria 0/2. तो यू कैन आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, सेंटिसिमल और 50 मिलीसिमल, सेम मेडिसिन का दोनों भी आप यूज कर सकते हैं, वन आफ्टर अनदर। ऐसा नहीं कि आप 200 दिया तो अभी 1 m दो, 10 m दो, इसकी जरूरत नहीं है। आप सेंटिसिमल से LM पोटेंसी में ट्रांसफर हो सकते हैं, और आपको विदाउट एग्रेवेशन क्योर मिलता है, जो कि सप्रेशन नहीं है, पैडिक्शन नहीं है, ये परमानेंट क्योर है, और बहुत शॉर्ट पीरियड में ये हुआ है। The conclusion, by using no other treatment than homeopathic Staphysagria 200 centesimal dissolved in water given in daily doses, followed by Staphysagria LM 0/2, a case of chronic psoriasis of many years standing was cured rapidly. This suggests that the use of Hahnemann's 50 millisimal dosing described in Organon 6th edition, combined with daily dissolved doses of centesimal potencies, may be more efficacious, prompt, and gentle than treatment with dry doses. तो ये आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसा यूज करके देखिए, उसके बाद क्या रिजल्ट आपको मिलता है उस पर आप डिसीजन लीजिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मैंने भी ड्राई डोज से ही किया, लगभग 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथी की, और पहले ड्राई डोज से यूज कर रहा था मैं, लेकिन धीरे धीरे वाटर डोज में चालू किया सेंटिसिमल स्केल, उसके बाद 50 मिलीसिमल स्केल चालू किया, जो कि पहला ऑर्डर जो मेरा था डॉक्टर साहनी सर ने ही मेरे को दिया था, पटना से मैंने ऑर्डर दिया, और वहीं वहीं से मैंने चालू किया था ये 50 मिलीसिमल। उससे पहले मैंने यूज नहीं किया था, बहुत कम यूज किया था उससे पहले। और ये जो इफेक्ट है हर एक केस में, नॉट ओनली दिस सिंगल केस, ऐसे बहुत सारे केसेस है। और जैसे रस वेन जो है, एक इरप्शन थे एक्जिमा का, जिसका एमुलेशन बाय हॉट वाटर, गर्म पानी से वो उसको इचिंग इरप्शन कम लग रहा था, इचिंग उसका, तो रस वेन उसको दिया गया। जब सेंटिसिमल में दिया तो वो पूरा बढ़ गया सेंटिसिमल स्केल में, लेकिन वही रस वेन जब आप 0/1 0/2 में देंगे
तो एम्यूलेशन विदाउट एनी एग्रेवेशन वो पूरी तरह से एक्जिमा भी कम हो गया, एलर्जिक रेनाइटिस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, इवन अस्थमेटिक केसेस, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक पे जो आते हैं पेशेंट, या फिशर में जो बर्निंग पेन होता है, उसमें जब आप नाइट्रिक एसिड देते हैं अगर इंडिकेटेड है तो, जब आप नाइट्रिक एसिड देंगे सेंटिसिमल में ट्राइडोस में, तो ये एग्रेवेशन और ज़्यादा होता है। तो इससे पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। और वही नाइट्रिक एसिड जब आप 0/1 पोटेशियम में सेकंड ग्लास का देंगे, सेकंड ग्लास में, तो तुरंत उसको रिलीफ मिलता है विदाउट एनी एग्रेवेशन, कुछ ही मिनट में उसको रिजल्ट मिलता है। और एक्यूट केस में भी जब फीवर का केस है जहाँ पे बिलाडोना इंडिकेटेड है, तो बिलाडोना आपने जब सेंटिसिमल में दिया 30 पोटेंसी में एक दो डोज, उससे एग्रेवेशन होता है, फीवर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता। बाद में वो कम होना है लेकिन पेशेंट ये टॉलरेट नहीं कर पाता। तो वही बेलाडोना आप वाटर डोज में देंगे उसको, थर्ड ग्लास फोर्थ ग्लास में सेंटिसिमल में, या तो फिर LM पोटेंसी में 0/1 0/2, वो भी सेकंड ग्लास थर्ड ग्लास आप यूज कर सकते हैं। तो वो केस में भी विदाउट एग्रेवेशन फीवर कम होता है और एक ही दिन में कम होता है। तो आपको वेट एंड वॉच करने की जरूरत नहीं है, पहले बढ़ाओ और बाद में कम करो, ये जो प्रोसेस है ये करने की आपको जरूरत नहीं है। तो दी वाटरी पोटेंसी आर द बेस्ट पोटेंसी अकॉर्डिंग टू मी। 5 साल से या 5-6 साल से मैं इसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जो कि हर केस में ये बहुत हेल्पफुल है, सभी तरह के केसेस में, एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक। तो आप भी ये सब यूज करके देखिए। जो हानेमन ने लिखा है लास्ट 5 years में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत कम लोगों को मालूम हुआ है। जो आफ्टर हानेमन जो आए, केंट, डॉक्टर केंट, बोनिंगसन, हेरिंग, इनको ये 50 मिनट स्केल के बारे में मालूम नहीं था, या जो न्यू मेथड ऑफ डायनामाइजेशन जो हानेमन ने लिखा है उसके बारे में उनको ये मालूम नहीं था। इसलिए बहुत लेट हुआ, लोगों को बहुत लेट ध्यान में आया इसका, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप ये सेंटिसिमल और 50 मिलीसिमल दोनों भी आप आपके प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं और पेशेंट को विदाउट एनी एग्रेवेशन रिलीफ दे सकते हैं। आपको वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक डोज दो और वेट एंड वॉच करो, ऐसा जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप उसको रिपीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में आपका रेमेडी सही होता है, पूरा केस चेकिंग आप करते हैं और सही रेमेडी देने के बाद उसका एग्रेवेशन होता है। तो बहुत बार आपको लगता है कि शायद रेमेडी गलत है, वेट एंड वॉच करने से भी ये कम नहीं हो रहा है, लेकिन वो रेमेडी आपका सही है, लेकिन सिर्फ उसको स्ट्रांग डोज आपने दिया है। तो वही डोज को आप जब डायल्यूट करके देंगे सेम मेडिसिन, तो तुरंत आपको रिलीफ मिलना चालू होता है, क्योंकि आपका मेडिसिन जो है रेमेडी सही है, सिर्फ उसको देने का तरीका आपका गलत है। जो तरीका आप चेंज करेंगे तो 100% आपको विदाउट एनी एग्रेवेशन क्योर मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहनी सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ फिर से, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया ये प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इंटरनेशनल फोरम पे। और सभी आप जो सभी अटेंड किया है जिन्होंने, उन सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सर डॉक्टर विजय जी। यस और सर। आप अपना पीपीटी को अब हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। यस यस। एक मिनट सर। हाँ या संदीप, एक मिनट। पीपीटी पीपीटी बंद कर रही, पीपीटी। हाँ ठीक है। हाँ, तो बहुत बढ़िया यस लगा। सर। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर। खास करके जो आपने एलएम पोटेंसी का इतना बहुत ही इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एलएम पोटेंसी का। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया है। और केस भी आपने एक कंपैरेटिव स्टडी आपने बड़ा अच्छा मुझे लगा आपका प्रेजेंटेशन में, कि आप सेंटिसिमल में और 50 मिलिसिमल में जो कंपैरेटिव स्टडीज केस के माध्यम से दिखलाया, हाँ ये हाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस सर। और आपने इस बात को प्रूफ किया यहाँ पर
कि एलएम पोटेंसी जो है सो 50 सेंटिसिमल से ज्यादा कारगर होता है। Yes. और डॉक्टर हैनीमैन का कॉन्सेप्ट, और आपने ये भी बताया कि बहुत लेट हम लोग होम्योपैथी में इसका यूज शुरू हुआ। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन के डेथ के बाद में 6th एडिशन का जो पब्लिकेशन हुआ वो बहुत ही लेट हुआ, है ना। और लेट होने Yes. के कारण क्या हुआ कि लोगों को जानकारी नहीं मिला। इवन केंट ने कभी एलएम पोटेंसी यूज नहीं किया, Yes. है ना। Yes. ऐसा Yes. हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं, नहीं किया। तो लेटेस्ट जो आपने पेरे स्मिथ के नाम बताए, उनके बाद लोगों को थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा ये चालू हुआ, हाँ। हाँ ज्यादा लोग आने लगा, है ना। तो Yes, sir. मैं तो अपने जब मैंने अपना क्लिनिक का जो मैंने अपने लाइफ में जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उस समय से मैं यूज कर रहा हूँ। मैं 50 मिलीसिमल की बात तो मैं हाँ, जानता हाँ, हूँ, सॉरी सेंटिसिमल की बात नहीं जानता हूँ। और हाँ, डॉक्टर हाँ। गंगा सागर जी भी बोल रहे हैं कि 20 साल से वो एलएम पोटेंसी यूज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में डॉक्टर राम प्रवेश जी कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन से, बहुत ही सरल भाषा में है, और हिंदी में भी आपने बहुत अच्छा से ये प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा। ये धन्यवाद दे रहे हैं आपको। और थैंक यू, सबको थैंक यू। ये एक डॉक्टर हरि नारायण जी का सवाल है, क्या एनी केस ऑफ एलएम पोटेंसी इज वेरी एक्टिव? आप सवाल करना चाह रहे हैं डॉक्टर हरि नारायण जी, या आप बोल रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं? ये देखिए, इस पे क्या हम लोग एनी केस एलएम पोटेंसी इज वेरी एक्टिव। एलएम पोटेंसी तो हमेशा हर एक जगह पर एक्टिव होता ही है। और आप हाँ सर, मैं क्वेश्चन नहीं किया हूँ, मैं बोला हूँ कि सर सारे केसेस में एक्टिव होता है, ये बात बोला हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मैंने 99% अभी मैं एलएम पोटेंसी यूज करता हूँ सर। हाँ मैं देख रहा हूँ जी। इंस्टेड ऑफ 100 ml आप एक 50 ml ड्रॉपर बोतल में भी यूज करके देखिए। नहीं सर, मैं 100 ml में ही देता हूँ, 100 ml में ग्लास बोतल में देता हूँ। फादर मुलर, सन जॉर्ज और कुछ बीजेन का मेरे पास एलएम और हेपको, 4 कंपनी का। क्योंकि सन जॉर्ज के पास पूरा 657 एलएम पोटेंसी है उसके पास। सन जॉर्ज, फादर मुलर के पास 500 है लमसम, एंड हेपको के पास 144 है, 149 समथम बीजेन के पास है। और इधर क्या बोलता है, मेडिसिन के पास भी 283 शायद है। तो ये बाकी सारी, हाँ ये सब यूज करता हूँ सर मैं। इसमें एक सवाल जो लोगों ने किया है कि कहाँ पर सबसे अच्छा मिलता है, तो शायद डॉक्टर हरिनारायण जी ने भी बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो है इसका मैं देख रहा हूँ कि इसका जो यूज है आपको एलएम पोटेंसी का जो मार्केट जो है, तो आपका बहुत ही स्पेसिफिक जो होता है वो होता है आपको क्या कहते हैं, हैप्को के द्वारा, है ना। और हैप्को का जो पोटेंसी है बहुत अच्छा है। फिर इसमें अभी पहले सबसे पहला जो है शुरुआत किया गया डॉक्टर आरपी पटेल के द्वारा बनाना शुरू किया गया था, बड़ौदा में के रहने वाले हैं, और उनके द्वारा किया गया था। हैप्को भी अपने बहुत समय में, और इनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एक अलग डिवीजन है जहाँ की केवल एलएम पोटेंसी ही बनता है। नेशनल का कैसा है? नेशनल फार्मा जो है वो भी अच्छा है, वो भी। अब तो बहुत सारे कंपनी आ गए, बीजन भी बनाने लगे, स्वाबे के भी पोटेंसी मिल रहे हैं। और आपको सेंट जॉर्ज के भी आपको एलएम पोटेंसी आपको मार्केट में आ गया है। लेकिन ओरिजिनल अभी जो बेस्ट है, और लेकिन हैप्को के साथ में दिक्कत क्या है कि आप ऑर्डर दीजिएगा तो आपको करीब 6 महीना से एक साल का समय लग जाता है। ये बड़ा बहुत ही दिक्कत का कारण होता है, जिसके कारण लोग ले नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग रिलाई करते हैं, इसलिए उसका यूज करते हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है जो कि आपको, और हैप्को के साथ लिमिटेशन क्या है, इसके हैप्को के जो रेंज है मेडिसिन का बहुत कम है ना। और इंटरनेशनल होम्यो इंटरनेशनल, ये भी आपको एक अच्छे जो
फाउंडर थे, वो इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। और यहाँ पर एलएम पोटेंसी के काफी अच्छे रेंज है। यहाँ पे HL होम्योपैथिक इंटरनेशनल करके इन्होंने कंपनी है कलकत्ता में, वहाँ भी मिलता है। तो और सभी कंपनी जितने बीजैन ने बनाया, स्वाबे ने बनाया, ये इनके सारे पोटेंसी बहुत ही माने रेंज जो है सो नंबर ऑफ बहुत लिमिटेशन है। और मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे क्लिनिक में अभी सारे केसेस खाली एलएम पोटेंसी से यूज हो रहे हैं। हाँ, समय पे एक सवाल और आता है कि हम लोग एक जो यूज करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ मेडिसिन जो कि एलएम पोटेंसी में नहीं अवेलेबल होता है। आज भी बहुत सारा ऐसा मेडिसिन है जो कि एलएम पोटेंसी में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सेंटिसिमल को यूज करते हैं। डॉक्टर संदीप सैराल का एक सवाल है। डॉक्टर संदीप सैराल, CM पोटेंसी से, डॉक्टर संदीप, व्हाट यू वांट टू से? डॉक्टर संदीप, आपके सवाल से मैं तो यही समझता हूँ कि एलएम पोटेंसी जो CM पोटेंसी से इसको कंपेयर करने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेंज का है ना। एलएम पोटेंसी देखिए, CM पोटेंसी हो या 0/1 और 0/2, ये अलग अलग ये है, और आप पेशेंट के सेंसिटिविटी के हिसाब से यूज करते हैं। फास्ट रिजल्ट की बात जहाँ होता है, तो वो फास्ट रिजल्ट जो है सो आपको फास्ट रिजल्ट जो है सो हमेशा आपको दोनों से हो सकता है, लेकिन 50 मिलीसिमल वाटर डाइल्यूशन होने के कारण इसका जो है वाटर डाइल्यूशन ही क्यों अच्छा है, ये एक सवाल और आता है। और इस पर जो मैंने चिंतन किया और मैं पढ़ा हूँ इस पर, तो ल्यूक डे सेफर का एक ऑर्गेनन का कमेंट्री है, आप लोग उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया है कि, और ऐसे भी केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है उसमें कहा गया है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है उसका फ्री फ्लो जो है सो वाटर में ज्यादा होता है। यानी कि पानी में अगर आप डालोगे तो पानी से जो है होता है वो ज्यादा ये ज्यादा बड़े उसका फ्री होता है, माने उनके मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री फ्लो करते हैं, यानी कि ज्यादा सक्शन उसका अच्छा होता है ना, रिजल्ट उसका रिजल्ट जी ये बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसा है, ये अलग अलग अनुभव है सबों के, एलएम पोटेंसी के और 50 मिलीसिमल के। तो मैं समझता हूँ कि और किसी को कोई सवाल है? और किसी को कोई सवाल है? हेलो सर, सर प्रणाम। और हमारे हेलो डॉक्टर विजय सर जी को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा केस आपने प्रेजेंटेशन किए, और खास करके 50 मिलीसिमल स्केल के वाटर डोज में दिए। तो वास्तविक में वाटर डोज में अच्छा काम करता है। पानी के साथ ऐसे भी कहा गया है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। यस। तो पानी का महत्व अलग है। यदि पानी नहीं रहता तो हमारा होम्योपैथ भी नहीं रहता। होम्योपैथ पानी पर ही डिपेंड करता है। और हाँ, खास करके चर्म रोग में या जो सेंसिटिव पेशेंट है उसमें वाटर डोज में देने में बहुत अच्छा। सोरेसिस का केस, खास करके सोरेसिस का केस में हम तो देखे हैं 2-4-5 सोरेसिस का केस जो आप बताए। इंसल्टी केस था एक हमारा भी, छत्तीसगढ़िया हम दिखे थे। तो इंसल्टी आफ्टर जो है सोरेसिस होता है, छत्तीसगढ़िया इज अ वेरी सूटेबल मेडिसिन। यस सर। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो है सबको अपना अपना उपयोग करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल, धन्यवाद सर। आपका और सवाल है, एक्यूट और क्रॉनिक में क्या इसका कंपैरेटिव कुछ बता पाएंगे डॉक्टर विजय जी? एक्यूट और क्रॉनिक में, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में भी ये यूजफुल है। दोनों में यूजफुल है। यस 100%। एक्यूट में तो बहुत
एक्यूट में भी बहुत ही इफेक्टिव है, मैं भी यूज किया हूँ। Yes, yes. खास करके कोरोना में आपको फिर हरिमोहन प्रसाद जी ने बताया है कि इनफर्टिलिटी के केस में भी उन्होंने यूज किया है और बहुत ही सक्सेसफुल इनको रिजल्ट्स यहाँ पर मिला है। तो वास्तव में ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपका था, और आप फिर से आइए और कुछ और केस को लेकर के आइए हम लोग के साथ में, बहुत अच्छा Yes. रहेगा, है ना। और Yes. मैं डॉक्टर वैष्णवी जी से कहूँगा कि आप इस सेशन को क्लोज करेंगे और डॉक्टर विजय दवारी जी को वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करेंगे। Yes, thank you so much, Dr. Vijay sir. It was really a nice presentation upon the cure of psoriasis. I'm handing it over to Dr. Manoj. Over to you, sir.